Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for botany and I would be covering chapter biological classification. In this video tutorial, we will learn about 6 kingdom classification and about viruses, viroids, prions and lichens. So 6 kingdom classification किसने दिया था? कार्ल वूज proposed 6 kingdom classification. कार्ल वूज ने propose करा था 6 kingdom of classification. He replaced kingdom Monera with two distinct kingdoms which are bacteria and archaebacteria. A 5 kingdom system of classification which was given by R.H. Whittaker. उसने क्या करा था, सारे living organisms को 5 kingdom में divide कर दिया था which are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. और कार्ल वूज ने क्या करा, जो किंगडम मोनरा है उसको 2 डिस्टिंक्ट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया विच आर बैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया. Thus the 6 kingdoms include kingdom bacteria, this is a picture of bacteria, kingdom archaebacteria, kingdom protista, rest सेम ही थे जो 5 kingdom system of classification में थे, protista, fungi, plantae and animalia. तो मतलब क्या है, बस ये 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स में डिवाइड हो गए मोनरा, तो जिसकी वजह से क्या आ गया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया विच वाज गिवन बाय कार्ल वूज. A small subunit of ribosomal RNA, that is 16S ribosomal RNA, was used as a marker for studying evolutionary relationship. Evolutionary relationship को study करने के लिए एक ribosomal RNA को as a marker use किया गया. This is the evolutionary tree. Carl Wood and co-workers observed that the 6 kingdoms naturally cluster into 3 main categories or domains. Carl Wood और co-workers ने क्या observe करा, जो 6 kingdoms थे वो naturally 3 main categories में cluster हुए. This classification has 3 domains such as bacteria, archaebacteria and eukaryotes, and these are believed to be originated from a common ancestral groups of early living organisms. उन्होंने क्या बोला कि जो 6 kingdoms थे वो naturally 3 domain में cluster हुए, और वो 3 domains कौन कौन से, bacteria, archaebacteria and eukaryotes. Archaea and eukaryotes are more closely related to each other than to bacteria. अब वैसे तो archaebacteria और bacteria एक दूसरे से closely related होना चाहिए, but archaea and eubacteria are more closely related to each other than to bacteria. So Carl Wood ने 6 kingdom system of classification दिया, और further उन्होंने क्या बोला कि ये जो 6 kingdoms थे वो naturally 3 domains में cluster हो रहे थे, and these 3 domains are bacteria, archaebacteria and eukaryotes. Next we will talk about viruses, viroids, prions and lichens. What are these? अब सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, viruses क्या होते हैं. In the 5 kingdom classification of Whittaker, R.H. Whittaker ने 5 kingdom system of classification दिया था. Lichens and some of acellular organisms like viruses, viroids and prions are not included. 5 kingdom system of classification में lichens को या फिर जो ये सारे जो viruses, viroids और prions है ये क्या acellular है. These are not included in 5 kingdom system of classification, इसलिए हम इनको अलग study करते हैं. सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे. ये क्या है, एक वायरस की पिक्चर है. ये कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज. दिस इज अ बैक्टीरियोफेज virus. These organisms did not find place in classification. 5 system classification में इनका कोई place नहीं था, since they are not truly living. 5 kingdom system classification में किसको मतलब कौन से organism को रखा गया था, living organisms को classify करा था into 5 different kingdoms. but ये viruses जो है वो living नहीं है, इनको living consider नहीं करते. क्यों living consider नहीं करते? Because living cells have cell, but viruses के पास कोई cell structure नहीं होता. Living as those organisms that have a cell structure, but viruses, viroids and prions they do not have cell, so they do not considered living. So अगर ये living नहीं है फिर भी ये disease कैसे cause करते हैं, मतलब ये इतनी सारी disease cause करती है. Plants में leaf rolling,
लीफ कर्लिंग वेन क्लियरिंग कोज करते हैं, या फिर वायरस ह्यूमन बींग्स में भी सेवरल डिजीज कोज करते हैं जैसे फीवर, मम, स्मॉल पॉक्स डिजीज, एड्स। तो ये अगर लिविंग नहीं है ये वाले सेल, तो ये कैसे डिजीज कोज करते हैं? The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Viruses क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? They are inert crystalline structure होता है इनका, ओके और ये क्या होते हैं? मतलब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। मतलब अगर ये किसी लिविंग सेल के बाहर है तो ये क्या करेंगे? मतलब इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ रिप्रोडक्शन नहीं होंगे। दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगी। ये क्या डिफरेंट शेप्स है वायरसेस की। दिस इज हेलिकल शेप वायरस and this is bacteriophage. You have to remember the structure of bacteriophage. ये क्या हेड है, ये क्या ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉलर, ये क्या शीट है और ये सारी क्या है, these are tail fibers. So this is the structure of bacteriophage. Once they infect a cell, they take over the machinery of host cell and replicate themselves. So virus अगर living cell के बाहर है तो ये कोई metabolic reaction शो नहीं करेंगे, बट अगर ये किसी host cell के अंदर आ जाएंगे तो ये host cell की मशीनरी ले लेंगे और खुद को replicate करना स्टार्ट कर देंगे। किलिंग द होस्ट सेल को किल कर देंगे और खुद को रेप्लिकेट कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप क्या, अटैचमेंट। वायरस अटैचेस टू द सेल सरफेस। अब इसमें क्या हो रहा है, वायरस अटैच कर रहा है सेल सरफेस पे। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, वायरस जो है वो अटैच कर रहा है सेल के सरफेस पे। नेक्स्ट में है पेनिट्रेशन। वायरल डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द सेल, द कोट ऑफ द वायरस रिमेन्स आउटसाइड। अब क्या है, वायरस ये क्या, सपोज ये कोई बैक्टीरियल सेल है, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो वायरस बैक्टीरिया पे अटैच करे, उसके बाद जो वायरल डीएनए है वो इंसर्ट कर देगा इनटू द बैक्टीरियल डीएनए। रेप्लिकेशन हो जाएगी, न्यूक्लिक एसिड इज रेप्लिकेटेड इनटू द होस्ट सेल में वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। उसके बाद न्यू प्रोटीन कोड्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन द होस्ट सेल। अब वायरस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीएनए होता है, उसके अराउंड क्या होता है, एक प्रोटीन कोड होती है। तो ये होस्ट सेल में क्या करेगा, पहले रेप्लिकेशन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, न्यू प्रोटीन कोड सिंथेसाइज कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, असेंबली होगी, दैट मीन्स मैच्योर वायरस आर असेंबल्ड विद इन द सेल। नए मैच्योर वायरस बन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल सेल को रैप्चर कर देंगे और खुद क्या होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। तो अब वो देखो अब क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरियल होस्ट सेल को किल कर रहे हैं और खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं। सो वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स। The name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Pasteur. Virus name किसने दिया था? It was given by Pasteur. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी हमने पढ़ा कि वायरसेस अगर लिविंग सेल के बाहर है तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करते, बट अगर वो होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और ग्रोथ करते हैं अपनी। सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर वो पैरासाइट के मतलब अगर वो होस्ट सेल पे रहेंगे तभी वो ग्रो कर सकते हैं। that are capable of growing and reproducing inside the cells of host. वो तभी ग्रो कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो होस्ट सेल के अंदर होंगे। दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ वायरस। ये क्या बैक्टीरियल जीनोम है और ये क्या वायरस है। वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हुआ और उसने क्या कर दिया, वायरल जीनोम इंजेक्टेड इनटू द सेल। वायरल जीनोम जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। A virus contains nucleic acid and protein. वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और उसके अराउंड क्या होता है, एक प्रोटीन की कोट होती है। जेनेटिक मटेरियल कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी हो सकता है या फिर डीएनए भी हो सकता है। द न्यूक्लिक एसिड इज इन्फेक्शियस। जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेक्शियस है, ये क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है इन द होस्ट सेल। No virus contains both RNA and DNA as their genetic material. किसी भी वायरस में RNA और DNA एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। A virus will contain either RNA or DNA as their genetic material. The protein part forms a cover
or coat called capsid and encloses the nucleic acid core. तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, और उसकी क्या होती है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, और ये जो प्रोटीन की कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैप्सिड. दिस इज न्यूक्लिक एसिड. और ये जो इंडिविजुअल यूनिट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर. So the protein part forms a cover or coat called capsid and encloses the nucleic acid core. This is again the picture of bacteriophage virus, and this is protein coat. Tobacco mosaic virus and human immunovirus are examples of RNA containing virus. तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसका क्या एग्जांपल है, टोबैको मोजाइक वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोवायरस. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस and this is human immunovirus. Viruses which infect bacteria are called bacteriophages. Bacteriophages कौन से वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेजेस. इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट वायरोइड्स. वायरोइड्स क्या होते हैं? In 1971, T.O. Diner discovered a new infectious agent. T.O. Diner ने 1971 में एक न्यू infectious agent की डिस्कवरी करी थी. That was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. उन्होंने क्या कौन से एजेंट की डिस्कवरी करी थी जो वायरस से भी स्मॉल था और क्या कोज कर रहा था, पोटैटो में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज कर रहा था. दिस इज द पिक्चर ऑफ वायरोइड्स. वायरोइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी स्मॉल होते हैं. इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हैंस नेम वायरोइड. अब वायरोइड का मीन्स डिवॉइड, दैट मीन्स ये कुछ लैक कर रहे हैं. अब वायरस में क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके अराउंड एक प्रोटीन कोड होता है, और अब वायरोइड्स में क्या होता है, खाली एक कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अराउंड कोई प्रोटीन कोड नहीं होती. सो इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, हेंस द नेम इज वायरोइड. इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए होता है, कोई उसके अराउंड कवरिंग नहीं होती, इसलिए इसका क्या नाम बोला गया, वायरोइड. इट लैक द प्रोटीन कोड. इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है, ये क्या है, वायरोइड है. The RNA of viroid was of low molecular weight. एक तो वायरोइड्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है. इनके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होती, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होता है. नेक्स्ट इज प्राइंस. प्राइंस क्या होते हैं, देर आर सम इन्फेक्शियस एजेंट्स विच पोजेस ओनली प्रोटीन्स बट नॉट न्यूक्लिक एसिड. अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिए, वायरोइड्स पढ़ लिए, एंड अब हम प्राइंस पढ़ेंगे. वायरस में क्या बोला कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अराउंड प्रोटीन कवरिंग होती है. वायरोइड्स में क्या बोला कि सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज आरएनए. और प्राइंस क्या होते हैं जिसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और इसमें क्या होता है, एक सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं और जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं. ये क्या है, फोल्डेड प्रोटीन है, मिस फोल्डेड प्रोटीन, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं. सो दीज आर सम इन्फेक्शियस एजेंट्स विच पोजेस ओनली प्रोटीन बट नॉट न्यूक्लिक एसिड. इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है प्राइंस में. सच एजेंट्स आर कॉल्ड एज प्राइंस. अब ये क्या डिजीज कोज करते हैं, दे कोज स्क्रैपी डिजीज ऑफ शिप एंड मैड काउ डिजीज. ये क्या कोज करते हैं, स्क्रैपी डिजीज कोज करते हैं, एंड शिप एंड मैड काउ डिजीज. काउ में कौन सी डिजीज करते हैं, इसका मैड काउ डिजीज का दूसरा नाम क्या है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी. इसमें क्या होता है, ये काऊ के अंदर जो नॉर्मल प्रोटीन्स है उनको नहीं बनने देते. तो इसके फिर अगर ये बहुत सालों तक ऐसे काऊ के अंदर रहते हैं तो क्या करते हैं, उनके ब्रेन में प्रॉब्लम कोज करते हैं. तो इसलिए इसका कॉमन नेम क्या है, मैड काऊ डिजीज.
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइकन्स. लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन होती है. किसके बीच में? म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. एल्गे और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसको हम टुगेदर क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं. दीज आर लाइकन्स. ये क्या है? एल्गे और फंजाई की एसोसिएशन है और ये क्या बना रहे हैं? लाइकन्स बना रहे हैं. The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. अब क्या हो रहा है? Algae and fungi एसोसिएट करके लाइकन बनाते हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रही है. अब इसमें एल्गल जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट बोलते हैं. दिस इज ऑटोट्रॉफिक. That means it can prepare its own food. And fungi क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है. That means वो food prepare नहीं कर सकता. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. अब इसमें क्या होता है? Suppose ये कोई algae है, ठीक है, इसके साथ क्या है? fungi के ऐसे एसोसिएशन हो जाती है. तो ये फंजाई क्या है? अब ये फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, वो खुद तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और वो एल्गे को देगा. एल्गे फूड को प्रिपेयर करेगा और वो किसको देगा? फंजाई को देगा. सो एल्गे प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. तो ये क्या है? म्यूचुअल एसोसिएशन हो रही है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. If one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अगर हम lichens को कहीं पे देखते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये दो different organism की association है. और इसकी क्या lichens कैसे useful है? They are very good pollution indicators. They do not grow in polluted area. तो ये क्या? ये lichens कभी भी polluted area में grow नहीं करते. So they are very helpful in indication of pollution. So this is all about six kingdom of classification: viruses, viroids, prions and lichens. Six kingdom of classification में हमने क्या पढ़ा? It was given by Carl Woese और उन्होंने क्या करा था? जो किंगडम मोनरा था उसको टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी में बांट दिया था, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में. और फर्दर उन्होंने 3 डोमेन दिए थे विच वर डोमेन आर्के, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूक्रियोट्स. उसके बाद हमने वायरसेस के बारे में स्टडी करा. वायरसेस का हमने क्या बोला कि ये क्या बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए और इसके अराउंड क्या होता है? एक प्रोटीन की कोड होती है. ये इन्फेक्शियस होते हैं, होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्शन कोज करते हैं इन प्लांट सच एज लीफ रोलिंग, वीन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ. और ह्यूमन बींग्स में भी ये सेवरल डिजीज कोज करते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स, डेंगू, फीवर और मम्स. These are about viruses. Then we talked about viroids. Viroids के बारे में हमने क्या स्टडी करा? They devoid protein code. मतलब इसके पास सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अराउंड कोई प्रोटीन कोड नहीं होती, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं इसके पास और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट. देन वी टॉक्ड अबाउट प्रायंस. प्रायंस क्या होते हैं? इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो क्या कोज करते हैं? डिजीज कोज करते हैं सच एज मैड काउ डिजीज or scrappy disease in sheep. Then we talked about lichens. Lichens क्या होते हैं? एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई के. These are prions. Lichens में हमने क्या बोला कि ये एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई के, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. एल्गे क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है और फंजाई क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल की फ्रॉम द सॉइल. और लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर. सो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.